Good evening, students. I'm your teacher Hemlata Yadav, and today we are going to discuss about the chapter Molecular Basis of Inheritance. I am talking about the class 12th CBSE Biology, and in that we are reading about the chapter Molecular Basis of Inheritance. So this chapter is dealing with the molecule which is responsible for the heredity in the organisms. Most of the organism DNA is the genetic material. The chapter starts with the DNA only. We are going to discuss all the topics of this chapter one by one. So let us start. I am sharing the screen with you. So DNA is the double helical molecule which is made up of a polymer of nucleotide. So it is also called as polynucleotide. In the DNA, we can say that it is very basis of the heredity because it has the structure so that it has two double bonds, two double stranded DNA molecule which are wound together. So it is a long polymer of deoxyribonucleic acids. The points are given and the length of the DNA depends on number of the nucleotides present in it. Characteristics of the organism depend on the length of the DNA. So whatever the length of the DNA, the characteristics will also depend. So I have shared the screen. It is taking some time to getting upload. And I'm telling you meanwhile the points of it. So I have discussed that DNA is a long polymer. So long polymer, that too double helical. And the length is depending on the nucleotides present in it. So you very well know it. Helix means something which is twisted. So when I can draw it, if I draw one strand moving from 5 dash to 3 dash, then what are these 5 dash and 3 dash? These are 5 dash phosphate group, which is at one end of the DNA, and other end is having 3 dash hydroxyl group, OH group. So these are the terminals of one strand of the DNA. The other strand will be parallelly wounded. And if this strand is having the end point 5 dash, तो इसके सामने वाले एंड में 3 डैश एंड होगा और इस वाले स्ट्रैंड को जो मैंने बनाया है इसके दूसरे एंड पर 5 डैश होगा. मतलब दोनों स्ट्रैंड्स के डीएनए की ओरिएंटेशन एक दूसरे के अपोजिट होती है. और ये जो स्ट्रैंड है इनके अंदर शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है. यहाँ पर अल्टरनेटली एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर एक फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरह से लगा रहता है. और शुगर से जुड़े हुए अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए नाइट्रोजन बेस होते हैं. जैसे अगर इस वाले स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड में ये थाइमीन से पेयर कर रहा होगा. इस वाले स्ट्रैंड में अगर गुआनिन है तो ये सामने वाले स्ट्रैंड में साइटोसिन से पेयर कर रहा होगा. अब आपको स्क्रीन आई होप दिखाई दे रही होगी, तो उसमें आपको डीएनए का डायग्राम भी दिख रहा है दैट इट इज अ डबल हेलिकल मॉडल और उसमें आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी दिख रहे हैं. So now we will be coming to the DNA from the PDF we will be reading.
Wherever there is important point, I will tell you. All the points are important for that sense. We have discussed few points already. That characteristic of organism depend on the length of the DNA. So that means every organism is having a characteristic nucleotide with fixed nucleotide base pairs. As you can see in the example, the bacteriophage, they are told that it is having 574 is the 174 is the bacteriophage name. It is having 5386 nucleotides. Bacteriophage lambda is having 48502 base pairs. That means the nucleotide number is fixed. DNA content is fixed for the organisms. Escherichia coli, E. coli is having this much amount of base pairs, 4.6 in 10 raised power 6. And human genome haploid is having the 3.3 into 10 raised power 9 base pairs. That is 3 billion base pairs. Here you can see the diagram that the two sugar phosphate strands are helically wounded toward each other, and the nitrogen bases are projecting from one strand, and in the front it is bonding with the complementary base pair. The adenine is bonding with the thymine and the cytosine is bonding with the guanine. The bonding is also shown here. Sugar phosphate bonds are present in the backbone, and therefore it is called sugar phosphate backbone. And the hydrogen weak bonds are present between the nitrogen base pairs. Structure of polynucleotide chain. A nucleotide has 3 components. That means nitrogen base, pentose sugar, ribose in case of DNA and RNA, and deoxyribose in the case of DNA, because उसका नेम भी फुल फॉर्म उसी वजह से पड़ा है. RNA को ribonucleic acid बोलते, DNA को deoxyribonucleic acid. A phosphoric group are also present. The two types of nitrogen based purines, which are adenine and guanine. Pyrimidines, which are cytosine, uracil, and thymine. Adenine, guanine, and cytosine is common in the RNA and DNA. Uracil is present in RNA and thymine is present in the DNA in place of uracil. Pentose sugar is ribose in the RNA, deoxyribose in the DNA. Nitrogen bases अटैच रहते हैं पेंटोज शुगर से एट C1 ऑफ द पेंटोज शुगर. फर्स्ट कार्बन पे जुड़ते हैं सारे नाइट्रोजन बेस्ड शुगर से. इसको एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं. तो आपको लिंकेज याद होना चाहिए, बोल्ड में भी दिया हुआ है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पेंटोज शुगर, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर देयर, राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड. किस तरह की हम शुगर यूज कर रहे हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन है, गुआनासिन है, क्योंकि यहाँ पर एडिनोसिन गुआनासिन इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं, राइबो शुगर है, साइटिडीन, यूरिडीन. और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स होने से डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, तो डीऑक्सी वर्ड जोड़ देते हैं हम इनके आगे. डीऑक्सीएडिनोसिन, डीऑक्सीगोनासिन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सीहेमिडीन. नाउ वहां पर यूरासिल यूरिडीन होगा और यहाँ पर थाइमिडीन मिलेगा. You can see there is uridine in the RNA and here, because RNA में यूरासिल होता है नाइट्रोजन बेस, उसकी जगह DNA में यूरासिल की जगह थाइमिन होता है. फॉस्फोरिक एसिड अटैच टू द 5-OH. 5-OH ग्रुप से फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ता है. 2 न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3- से 5- डायरेक्शन, 3-OH से 5- फॉस्फेट पे बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है. More than 2 nucleotide join to form polynucleotide. Polynucleotide chain के पास फ्री फॉस्फेट एंड होता है 5- एंड शुगर का, इसलिए 5- एंड बोलते हैं. दूसरा एंड हमेशा 3- हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 3- एंड. बैकबोन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की शुगर फॉस्फेट की होती है, नाइट्रोजन बेस्ड लिंक शुगर मोइटी से होता है, यूनिट से वो बैकबोन से निकल रहे होते हैं. इन द RNA हर न्यूक्लियोटाइड के पास OH ग्रुप होता है 2- राइबोस पे. RNA में एक OH 2- पोजीशन पे भी होता है, जबकि DNA में OH की जगह सिर्फ H होता है. इन RNA यूरासिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थाइमिन एंड 5-मिथाइल यूरासिल दूसरा नाम है थाइमिडीन का.
हिस्ट्री डीएनए की क्या है, डीएनए एसिडिक सब्सटेंस था, सबसे पहले फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में उसे डिस्कवर किया था और उसको न्यूक्लिन नाम दिया था क्योंकि वो न्यूक्लियस से मिला था व्हाइट ब्लड सेल के फर्स्ट सेल से उसने आइसोलेट किया था। 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने दिया बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा जो मॉरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिए थे कि उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा था कि इट वाज लाइक अ हेलिक्स। तभी उन्होंने डीएनए का उसकी नॉलेज को यूज करके वाटसन और क्रिक ने उसका डबल हेलिकल मॉडल दिया। हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड बिकॉज वो हेलिक्स के फॉर्म में ही बेस पेयरिंग का रूल दे पा रहे थे जो कि रूल्स इरविन चारगाफ में दिए थे। तो बेस्ट सुटेबल मॉडल था double helical model. Chargaff observation was that for a double stranded DNA, the ratio between the adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1. Salient features भी यहाँ पर दे रखे हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी, शुगर फॉस्फेट जो कि बैकबोन बनाता है और बेसिस अंदर की तरफ रहेंगे, टू चेन एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होंगी, टू स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, एडेनिन वन एक स्ट्रैंड का थाइमिन से पेयर करेगा दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, गुआनिन एक स्ट्रैंड का साइटोसिन से पेयर करेगा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। प्यूरिन comes opposite to pyrimidine, generates approximately uniform distance between the two helix and two chain are coiled at right-handed fashion. Pitch of the helix one turn की length 3.4 नैनोमीटर होगी 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर। रफली 10 बेस पेयर होंगे एक टर्न में। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज 0.34 nanometer or 3.4 angstrom. The plane of one base stacks over the other, and H hydrogen bond confirms stability of the helical structure. Central dogma is given by Francis Crick, and gives that DNA अपने आप को खुद भी बना सकता है by replication. DNA can make DNA by replication, and DNA can produce RNA by the process of transcription, and it can make protein by translation. So this we can say that DNA can make its own itself. So it is a replication. DNA can make DNA, and DNA can make RNA. It is transcription, and DNA can make a protein, that is translation. So it is transcription, and RNA can make the protein, it is translation. So इस तरह से genetic information flow होती है, that is given by the Francis Crick. Because DNA double helix है तो वो अपने आप को खुद भी replicate करा लेता है, प्रोटीन बना लेता है, एंड आरएनए के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद वो उस आरएनए से प्रोटीन भी बना लेता है। पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है 0.34 नैनोमीटर है। लेंथ डीएनए की मैमेलियन 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। इट बिकम्स 2.2 मीटर का हो जाता है, बट हमें पता है कि न्यूक्लियस का डायमेंशन तो 10 माइक्रोमीटर्स के बराबर है, तो कैसे उसके अंदर इतना 2.2 मीटर का डीएनए आ सकता है? तो इसका रीजन है कि पैकेजिंग रहती है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता तो डीएनए इज नॉट स्कैटर। फिर भी डीएनए एक सेंटर में एक रीजन में रहता है, हेल्ड बाय certain in proteins in the loops, and this center region बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो जब बैक्टीरिया में ही वो एक सेंटर रीजन में रहता है तो हम यूकारियोट्स में तो इससे भी ज्यादा क्योंकि पैकिंग रहेगी, क्योंकि उसमें तो न्यूक्लियस भी है, तो उनमें भी पैकेजिंग रहती है। अब हम पैकेजिंग यूकारियोट्स की देखेंगे। Packaging in the eukaryotes is through the nucleosome structure, which you can see that on the nucleosome is made by the wrapping of the DNA. Negatively charged DNA is wrapped on this protein. So it is wrapped one turn, 1.5 turn DNA, nearly 200 base pair DNA is wrapped over it.
एंड द हिस्टोन्स देयर आर ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, 8 हिस्टोन अंदर होते हैं। 4 तरह के ये होते हैं, पेयर में होते हैं, इसलिए 8 हिस्टोन, इसीलिए ऑक्टामर कहते हैं उसको। न्यूक्लियोसोम ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स, and this structure along with the DNA wrapped on the histone is called nucleosome. In the eukaryote, packaging is more complex. There is a set of positively charged proteins called histones, and histones are positive charged due to rich in basic amino acids. ज्यादा उनमें बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए उनको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो। हिस्टोन ऑक्टामर्स 8 मॉलिक्यूल्स का बना होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए उस पे रैप्ड होता है और न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर का डीएनए लिपटा हुआ होता है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स called chromatin, thread-like stained bodies seen in the nucleus. The nucleosome are seen as beads on the string structure when viewed under electron microscope. क्रोमेटिन पैक हो रखा होता है क्रोमेटिन फाइबर में। देयर आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंसेड मेटाफेज, जो और भी कॉइल होता है तो वो क्रोमोसोम बना लेता है मेटाफेजिक, हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखने लगता है। पैकेजिंग एट अ हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स लगते हैं, उसके लिए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एनएचसी बोला जाता है। इन टिपिकल न्यूक्लियस सम लूजली कॉइल्ड रीजन भी होते हैं क्रोमेटिन के। 2 तरह के क्रोमेटिन हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैकिंग। लूजली कॉइल्ड रहेगा तो यू क्रोमेटिन, ताकि वो एक्टिव रहता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होती है वहां से क्योंकि वो ढीला होता है। क्रोमेटिन जो ज्यादा टाइटली पैक्ड रहता है, डीएनए का थ्रेड है जो ज्यादा अगर कॉइल्ड है तो उसकी वो इनएक्टिव रहेगा, उसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलेंगे। जब जेनेटिक मटेरियल का सर्च चला के कौन सा मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो 2-3 साइंटिस्ट ने इसके लिए एक डिस्कवरी करने का कोशिश की। तो उसमें सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, जिन्होंने अपना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसने इन बैक्टीरियाज को 2 स्ट्रेन ऑफ निमोनिया, इन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। एस्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन। इनको उन्होंने माइस में इंजेक्ट करके देखा, तो आर स्ट्रेन तो नॉन पैथोजेनिक था, पर एस स्ट्रेन पैथोजेनिक होता है बिकॉज ऑफ इसके पास कैप्सूल होता है। तो आर स्ट्रेन के पास म्यूकस कोट नहीं होता, कैप्सूल नहीं होता, इसलिए जब उससे इंजेक्ट किया जाता है तो माइस जिंदा रहता है। बट जब एस्ट्रेन से इंजेक्ट किया जाता है माइस को, तो माइस डाई हो रहता है। ये बताता था कि एस्ट्रेन पैथोजेनिक है। यहाँ देख सकते हैं आप। पर जब उसने हीट किल करके एस्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तब माइस बच गया बिकॉज हीट किलिंग के बाद वो उससे उसका कैप्सूल ब्रेक हो गया था और वो इन्फेक्टिव नहीं रहा। बट जब उसने ऐसा देखा कि मिक्सचर अगर डेड एस वाले स्ट्रेन को, डेड स्मूथ एंड लाइव आर को वो अगर माइस में डाले तो माइस मर जाता है, और उसके ब्लड से हमें लाइव स्मूथ सेल्स ही मिलते हैं। तो कंक्लूजन ये था कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसी तरह से चेंज हो जाता है स्ट्रेन बैक्टीरिया में, and some transforming principles transferred from heat-killed S strain bacteria that enable the R strain to synthesize smooth polysaccharides and become virulent S strain. The transformation of R strain to S strain is due to the transfer of genetic material